students. Let's discuss electrophilic substitution reaction, that is electron अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया. So first we should understand that yes, haloalkanes does not undergo this electrophilic substitution reaction, but yes, haloarenes can show electrophilic substitution reaction. Now which can be a electrophile or electron anuragi. First, electrons are negatively charged. तो कौन से आयन होंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन लविंग बनेंगे? पॉजिटिव आयन. ठीक है, तो पॉजिटिव आयन जो है वो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और वहां पे लग जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन. एक को हटा के उसकी प्लेस पे दूसरे का आना. ठीक है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. नाउ अंडरस्टैंड, बेंजीन इज ऑलरेडी मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन, मीन्स एक हाइड्रोजन उसका रिप्लेस होके क्लोरीन ऑलरेडी अटैच है. हमें हेलोएरीन का एग्जांपल लेना है इसलिए. ठीक है, और अभी पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाई haloarenes undergo electrophilic substitution reaction. What is the reason? First, chlorine has a atomic number 17, 2,8,7. Okay, so it has 7 electrons in its outermost orbit. That's why one is already bonded with this carbon. Still, chlorine is having this 3 pairs. Okay, so when this bond shifts here, there will be a resonance structure, सस्पेंदन बंधारण. Okay, double bond, chlorine, 2 pairs. Okay, these 2 bonds are as it is. Now, here with this carbon there is electron deficiency. So chlorine will donate this 2 pair here, and this carbon will gain this 2 pair. So it will gain a negative charge, and this position is ortho. Now next, this is pi electrons are interconvertible and these bonds are also. So now these bond will move here. So this bond is as it is. Now this bond we can show here, and here it is double bond Cl and 2 electron pair. Now you can see clearly this carbon is having electron deficiency, and this position is what? Para. Okay, again we can form a resonance structure. Just a second. Yes. Now this bond will shift here. This is as it is. This will shift here, and this is also as it is. So now there will be electron deficiency at this carbon. So it will gain a negative charge, and this position is what? Ortho. Okay, now last. If this bond shift here, these 2 are as it is, and if this bond shifts here, okay, this electron again arrange with the chlorine. Okay, so there are total 5 resonating structures or canonical forms. Okay, now तो ये 5 स्ट्रक्चर से आपको एक बात पता चलती है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनता बढ़ने वाली है. तो अभी जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा तो डेफिनेटली वो कहाँ पे अटैच होने वाला है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग. ओके, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन अनुरागी है. तो डेफिनेटली जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रक्रियक जो है वो वहाँ पे ही अटैच होगा. सो one thing is that already present group is chlorine, so it will decide when the reaction undergoes, the coming group or attaching group will attach at the ortho and para position, because chlorine is ortho para directing. That we have proved with this 5 resonating structures. Okay, is it clear? Now let's discuss our first
electrophilic substitution reaction, that is nothing but halogenation. That is halogenation. Okay, now think about, we have already chlorine attached here and we are undergoing a chlorination reaction, Cl2 and FeCl3. So what will be our mechanism? This is Cl minus and Cl plus. This will form FeCl4 minus and Cl plus. So Cl plus will be electrophilic because this is positive ion. तो definitely अभी एक बात फिक्स है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में हमें दो प्रोडक्ट मिलती है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप में लिख लेती हूँ, फिर ऑर्थो पे एक प्रोडक्ट मिली और पैरा पे. सो दिस नेम ऑफ दिस इज व्हाट? क्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. सो दिस थिंग्स आर क्लियर नाउ. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर हम क्लोरीन प्रेजेंट है और ब्रोमिनेशन करेंगे Br2 FeBr3, तो सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, FeBr4 माइनस एंड Br प्लस. तो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप तो क्लोरीन ही है, ठीक है ना, वो लिख लेंगे. फिर ब्रोमीन जो है वो एक ऑर्थो पे फॉर्म होगा और एक कहाँ पे फॉर्म होगा? पैरा पे फॉर्म होगा. ठीक है. अभी yes, all the halogens are having same priority, so you have to follow alphabetical order. So bromine will get first number and chlorine second. So 1 bromo, 2 chloro benzene. Okay, and here 1 bromo, 4 chloro बेंजीन. ओके, नाम लिखना ज़रूरी है. यस, अगर यहाँ पे ब्रोमीन अटैच रहा और आप क्लोरीनेशन करवाओगे या फिर ब्रोमिनेशन करवाओगे तो भी एक बात तो पक्की है कि प्रोडक्ट आपको एक ऑर्थो पे मिलने वाली है और एक कहाँ पे मिलने वाली है? पैरा पे मिलने वाली है. डेफिनेटली द प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड एट पैरा इज़ 99% major and the product which is formed at ortho is 99% minor product. So here this is our major product and this is our minor product. Okay, now Q. तो यहाँ पे जब groups are nearby to each other, there is a steric hindrance. Okay, and that this is the reason. Steric hindrance means what? कि इलेक्ट्रॉन और एटम ज़्यादा होने से क्राउड वहाँ पे बढ़ जाता है और क्राउड वहाँ पे बढ़ जाने से उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, तो कम प्रोडक्ट फॉर्म होगी, इसलिए ये हमारी माइनर प्रोडक्ट हो जाएगी. ठीक है. चलो अभी हम थर्ड रिएक्शन डिस्कस करते हैं. सो थर्ड रिएक्शन इज नथिंग बट nitration. So for nitration we have to use a nitrating mixture that is concentrated HNO3 and H2SO4. Let's discuss mechanism of this first, such as if we separate H plus from this, okay, and OH minus from this, then here we will have O and H is separated, so NO2 plus. So these will form H2O. This is nucleophile and this is our electrophile. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, तो कौन अटैच होगा? इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच होगा. ठीक है. चलो, तो मैं ले लेती हूँ ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप क्लोरीन. अभी हम करवाने जा रहे हैं नाइट्रेशन, तो हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले लेंगे. ठीक है. और यस, तो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला जो ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच होगा. तो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप लिखने के बाद एक तो ऑर्थो पे फॉर्म होगा और दूसरा जो है वो पैरा पे फॉर्म होगा. ठीक है. क्लियर. चलो, तो डेफिनेटली orthonitrophenolbenzene and paranitrophenolbenzene is the name of the. Definitely this is major and this is minor. Okay, you can say मुख्य निपज અને गौण निपज. चलो नेक्स्ट
we are doing sulfonation. So for sulfonation we can use concentrated H2SO4 and SO3. This is nothing but oleum. Okay, SO3 plus H2SO4. Okay, and now we will understand the mechanism first. ये बाद में तो H2SO4 ही फॉर्म करता है, अपने कॉन्टेक्ट प्रोसेस ऑलरेडी देख चुके हैं आप 10th में। तो एक जो है उसमें से मैं क्या करती हूँ, H प्लस सेपरेट करती हूँ, दूसरे कंपाउंड से मैं OH माइनस सेपरेट करती हूँ। OH सेपरेट हो गया तो HSO3 प्लस आ जाएगा, दिस इज आवर, ये फॉर्म करेगा H2O और दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो चलो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप में ले लेती हूँ क्लोरीन। ठीक है, सल्फोनेशन करवाएंगे हम, ओलियम ले लेते हैं SO3 H2SO4। तो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप हम लिख लेंगे क्लोरीन। उसके बाद एक जो SO3H है वो ऑर्थो पे फॉर्म होगा और एक जो SO3 है वो पैरा पे फॉर्म होगा। यहाँ पे SO3H जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 2 क्लोरो benzene sulfonic acid, 4 chloro benzene sulfonic acid. This is the name. Okay, now definitely this is our major product and this is our minor product. Okay, now the last electrophilic substitution reaction, this is known as Friedel-Crafts reaction. In Friedel-Crafts reaction, we have two types of reaction. One is Friedel-Crafts alkylation, in which alkyl group is getting attached, and the another one is Friedel-Crafts acylation, in which acyl group is getting attached. So we will write already present group chlorine on the benzene. Now we can take CH3Cl or CH3CH2Cl means methyl chloride or ethyl chloride, and definitely with that we can take catalyst, that is AlCl3. Okay, so there is formation of AlCl4 minus, this is CH3 plus Cl minus, this will form AlCl4 minus and CH3 plus. So here CH3 plus will be our electrophile. So already present group is chlorine and CH3 group will get attached at ortho position. Already present group is chlorine and CH3 group will attach at the para position. This is our major and this is our minor product. Benzene with CH3 is known as toluene. So we can say 4-chlorotoluene and 2-chlorotoluene. चलो यहाँ पे हम देखते हैं, तो डेफिनेटली 2 प्रोडक्ट फॉर्म होने वाली है। एसाइल ग्रुप जो है वो अटैच होगा, तो CH3COCl लिखेंगे, ये CH3CO प्लस एंड Cl माइनस AlCl4 माइनस एंड CH3CO प्लस। तो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप क्लोरीन इज एट फर्स्ट पोजिशन and COCH3 at second position and COCH3 at fourth position. Okay, this is major and this one is minor. Okay, now अगर आप IUPAC नेम लिखना चाहो तो आपको 1-2 लिखना है। फर्स्ट पोजीशन पे आपको लिखना है कि 1-क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ओके, सॉरी 2-क्लोरोबेंजीन, ओके, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथेन 1 ऑन, ओके। अदरवाइज आपको पता ही है बेंजीन रिंग पे CaCH3 है तो उसका कॉमन नेम है एसीटोफिनॉन, सो वी कैन राइट 2-क्लोरो, डेफिनेटली इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, 2-क्लोरो एसीटोफिनॉन, और यहाँ पे आएगा 4-क्लोरो एसीटोफिनॉन। ओके, तो भाई फाइनली हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक है थोड़ा पड़ा है वो रह जाएगा, तो वो है पॉलीहेलोजेंस। हेलो, अभी लास्ट लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया था उसके अंदर मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, तो हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो वो ये है कि मैंने आपको बता दिया था थ्रू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कि जितने भी डेफिनेटली ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उतनी ही रिएक्टिविटी जो है वो हैलोएरिन्स की ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करना भूल गए थे, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन के साथ पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन 443 केल्विन पे ही हो जाएगा। ओके, OH ग्रुप को वो सब्स्टिट्यूट कर लेगा और NO2 तो यहाँ पे रहने ही वाला है। अभी आप देख सकते हो कि एक NO2 ऑर्थो पे है और एक पैरा पे है, तो इससे ज्यादा इसमें रिएक्शन फास्टर होगी और कम टेम्परेचर पे हो जाएगी। Cl NO2 NO2, ठीक है। अभी आप इस पे देख सकते हो इसकी दोनों ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप है, तो इससे भी इसे फॉर्म करोगे तो भी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन की। तो मतलब आपको समझाना यही था कि जितने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि हमने समझ लिया था कि मेटा पोजीशंस पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहे तो भी रिएक्टिविटी में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी बढ़ रही होती नहीं है। ठीक है ना, वो एक्टिवेट होते ही नहीं है, वो पोजीशन जो है वो एक्टिवेट ही नहीं होती है, उसकी सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो है वो ही एक्टिवेट रहती है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर ग्रुप जुड़े होंगे तो ही वो रिएक्टिविटी जो है हैलोएरिन की बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो किसकी है, ये वाले कंपाउंड की, सबसे से फॉर्म करने से हो जाएगा। ओके, मीन्स यू कैन से टू, चलो यस क्लियर। तो प्लीज आप डाउ प्रोसेस के बाद ये वाला टॉपिक जो है वो ऐड कर लेना। उसके बाद आप ये पैरा ऑर्थो और बेटा वाला जो हमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे वो कंटिन्यू कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस, इवन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्लीज लेट मी नो, एंड प्लीज today at 1 PM we are going to solve your query। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे तुरंत वहाँ पे पूछ सकते हो, we will give you the solution। Okay, thank you so much।